Assalamualaikum guys, I hope that you are fine and happy. Dears, today we are talking about preposition by. What is preposition by? By is a simple preposition. There are 24 usage of preposition by. What is by? By is a simple preposition because it is consist of only one word. By एक simple preposition है क्योंकि ये फॉर्म में फंक्शन में क्या सिंगल है. ओके भैया, नेक्स्ट कह रहे हैं how many usage of by are there? There are 24 usage of by. What is first one? In this usage, by give the meaning of next to, beside to, near to वगैरह वगैरह. कह रहे कि by give the meaning of next to, beside to, near to. by हमेशा के करीब, के पास, के साथ का मतलब रखता है. It's mean we can use preposition by in the place of next to. We can use preposition by in the place of word beside to. We can use preposition by in the place of word near to. Okay, देखते हैं कि they are living by us. इसका मतलब है कि वो मेरे पास रहते हैं, वो मेरे करीब रहते हैं. Here by giving the meaning of next to, here by giving the meaning of near to, here by giving the meaning of beside to. Okay भैया, नेक्स्ट हमने कहा था कि Challenger Academy is present. Challenger Academy is present. Challenger Academy is located near to इमदाद चौक. कि हमने कहा कि Challenger Academy इमदाद चौक के करीब है. इसका मतलब है in the place of near to we can use preposition by. Challenger Academy is located by Zarhum Road, by इमदाद चौक, etc. What is the second usage of by? In this usage, by gives the meaning of during. कि by give the meaning of during. by during का ही मतलब रखता है. by give the meaning of during. by during का मतलब रखता है, के दौरान का मतलब रखता है. It's mean we can use preposition by in the place of during. हम word during की बजाय by को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. It's mean by give us the meaning of during. by हमें during का मतलब देता है, मीन के दौरान का मतलब देता है. कैसे? I go to market for shopping. मैं शॉपिंग के लिए मार्केट चला जाता हूँ. By night, it's mean during night. रात के दौरान मैं कहाँ जाता हूँ? मार्केट में जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए. We can use by in the place of during. I go to market for shopping during night. I go to market for shopping by night. Okay भैया, नेक्स्ट करें. By give the meaning of before. by before का मतलब रखता है. by give the meaning of before means से पहले. by हमें before का मतलब देता है, से पहले का मतलब देता है. जैसे हमने एग्जांपल लिया था, I will come back. मैं वापस आऊंगा by 3 o'clock. 3 बजे से पहले. I come back before 3 o'clock. मैं 3 बजे से वापस आऊंगा. It's mean we can use by in the place of before. हम before की जगह पर by को इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके भैया, नेक्स्ट कह रहे हैं by gives the meaning of throw. by give the meaning of throw means show the method or way in which an action is done. ये done. कह रहे by give the meaning of throw in which any action mean show the method, show the way in which any action is done. by throw का मतलब रखता है, हमें वो तरीका बताता है, वो जरिया बताता है जिससे किसी एक्शन को किया जाता है. जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड बाय मार्कर. बोर्ड मार्कर मीन कि मैं बोर्ड पे लिखता हूं, लिखने का जो अमल किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ मार्कर मीन मार्कर की मदद से. बाय मार्कर. आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड बाय मार्कर. मैं मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं. इट्स मीन बाय गिव द मीनिंग ऑफ थ्रो मीन हमें वो सोर्स बताता है, वो जरिया बताता है जिसके जरिए से एक अमल को किया जाता है. ओके भैया, नेक्स्ट कह रहे हैं by gives the meaning of passing through. mean by give the meaning of route. ये हमें रूट का मतलब रखता है. मीन रास्ता. पासिंग थ्रू एक रास्ते का मतलब रखता है कि जब एक अमल एक रास्ते एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, हम एक ऐसे रास्ते से जाते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, रोड से जाता हूँ इस्लामाबाद, या फिर एरोप्लेन के जरिए से हवाई रास्ते से चला जाता हूँ इस्लामाबाद. ये हमारे पास रास्ता शो करा होता है. जैसे मैंने कहा आई गो टू ईरान. आई गो टू ईरान बाय सी. मैं समंदर के रास्ते से ईरान चला जाता हूँ. आई गो टू सऊदी अरेबिया बाय सी. मैं सऊदी अरेबिया समंदर के रास्ते चला जाता हूँ.
ये मीन इसका मतलब है कि बाय हमें वो रास्ता बताता है कि जिसके ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं। ओके भैया, नेक्स्ट देखते हैं कि यूजिंग नंबर 6 के बाय इज यूज विद वर्ड पास। बाय को हम लफ्ज पास के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टू मेक अ न्यू वर्ड बाईपास, एक नया अल्फाज बाईपास बनाने के लिए। विच मीन एक्स्ट्रा रोड। बाईपास का लफ्जी मतलब है एक एक्स्ट्रा रोड, इजाफी रोड, विच इज फॉर्म टू डिक्रीज द रश ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी, जिसको बनाया जाता है शहर में गाड़ियों के व्हीकल्स के रश को कम करने के लिए। डिक्रीज द रश ऑफ व्हीकल्स इन द मार्केट इन द सिटी एक्सेट्रा, बाजार में, सिटी में, शहर में गाड़ियों की रश को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बाईपास बनाया जाता है। इसका मतलब है कि बाईपास इज यूज्ड विदाउट पास। बाईपास को हम लफ्ज पास के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड बाईपास विच मीन एक्स्ट्रा रोड। एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बाईपास इन क्वेटा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान क्वेटा में एक न्यू बाईपास कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बाईपास मीन एक एक्स्ट्रा रोड बना रहे हैं। टू डिक्रीज द रश ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों के रश को खत्म करने के लिए, गाड़ियों के रश को कम करने के लिए। ओके भैया, फिर देखते हैं व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन बाय। बाय इज अ सिंपल प्रीपोजिशन। देयर आर 25 यूजेज ऑफ बाय। हमने कहा कि बाय गिव द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट टू, बाय गिव द मीनिंग ऑफ बिसाइड टू, बाय गिव द मीनिंग ऑफ नियर टू। जैसे मैंने कहा कि बाय उर्दू मतलब के करीब, के पास, के साथ का मतलब रखता है। आई लिव, वी आर लिविंग बाय देम, हम उनके करीब रह रहे हैं। इसका मतलब है इन द प्लेस ऑफ नियर टू, इन द प्लेस ऑफ बिसाइड टू, इन द प्लेस ऑफ नेक्स्ट टू वी कैन पुट बाय। हम बाय को पुट कर सकते हैं, हम बाय को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं बाय गिव द मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग। बाय के दौरानिया का मतलब रखता है। बाय गिव द मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग, के दौरानिया। आई गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग ड्यूरिंग मिडनाइट, मैं आधी रात के दौरान बाजार चला जाता हूँ शॉपिंग के लिए। आई गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग बाय मिडनाइट, इट्स मीन वी कैन यूज बाय इन द प्लेस ऑफ ड्यूरिंग। बाय गिव द मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग, बाय ड्यूरिंग का मतलब देता है, सो वी कैन यूज बाय इन द प्लेस ऑफ ड्यूरिंग। हम बाय को भी ड्यूरिंग की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं बाय गिव्स द मीनिंग ऑफ बिफोर। बाय बिफोर का मतलब रखता है, बाय गिव द मीनिंग ऑफ बिफोर। आई गो टू लाहौर बिफोर अप्रैल, मैं अप्रैल से पहले लाहौर चला जाता हूँ। आई गो टू अप्रैल, आई गो टू लाहौर बाय अप्रैल, मैं अप्रैल से पहले लाहौर चला जाता हूँ। वी कैन यूज बाय इन द प्लेस ऑफ बिफोर, हम बिफोर से पहले बिफोर की जगह पर बाय को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कह रहे बाय गिव द मीनिंग ऑफ थ्रो, मीन शो द मेथड और वे इन विच एन एक्शन इज डन। बाय को हम बाय गिव द मीनिंग ऑफ थ्रो, बाय थ्रो का मतलब रखता है, इट्स मीन इट टेल अस द मेथड, इट टेल अस, इट शो द मेथड, इट शो द वे, वो जरिया बताता है जिसके जरिए से एक अमल को किया जाता है। जैसे मैंने कहा आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड बाय मार्कर, मैं मार्कर से क्या करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ। बाय गिव द, बाय इज यूज बाय गिव द मीनिंग ऑफ रूट, पासिंग थ्रू का मतलब रखता है। रूट का मतलब कि एक रास्ते से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, रास्ते का मतलब रखता है। आई वेंट टू ईरान बाय सी, मैं समंदर के रास्ते से ईरान चला जाता हूँ। बाय इज यूज विद वर्ड पास, बाय को हम लफ्ज पास के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड बाईपास, एक नया अल्फाज बाईपास बनाने के लिए। मीन बाईपास एक वर्ड है जो कि हम पास के साथ बाय को पुट करते हैं और एक नया अल्फाज बाईपास बनाते हैं, विच मीन एक्स्ट्रा रोड, जिसका मतलब है एक इजाफी रास्ता। ओके भैया, आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ बाय क्लियर हो गई। इसके बाद इंशाल्लाह हम यूजेज नंबर इसके 7, 8, 9 ऐसा सब बात करेंगे इंशाल्लाह।